हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम हमारे पास में है जो कि डिटरमिनेंट की है और हमें इसको प्रूफ करना है। सो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। सो दैट डिटरमिनेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे LHS की वैल्यू को 2 टाइम्स ऑफ दिस में कन्वर्ट करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि जो आपके लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, वो सभी दो एलिमेंट का समेशन है जो राइट साइड की वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इन वैल्यूज़ को कुछ इस प्रकार से हम रो वाइज या कॉलम वाइज अरेंज करें ताकि इन वैल्यूज़ को आसानी से निकाला जा सके। ओके, सो आइदर यू अरेंज देम इन रो वाइज और कॉलम वाइज, दे बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ समथिंग। तो इसी तरीके से हमारे पास में वो प्रॉब्लम बन जाएगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रास्ता यहाँ से मिल गया। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है होगा। सो let determinant of B plus C plus A and A plus B, that is a C plus A plus B and B plus C, A plus B, B plus C and C plus A, that is must be equal to 2 times of determinant of A, B, C and B, C, A, C, A, B। ये हमें प्रूफ करना है एज पर क्वेश्चन। सो देखते हैं। तो वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। सो LHS को हम लोग लेते हैं। सो LHS, सो टेकिंग LHS, now taking LHS, so that will be mod B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B and B plus C, A plus B, B plus C, C plus A. Okay, so next what we will do, we will applying the property. That property will be R1 equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, so if we apply this particular property, your expression will be, that will be 2 times of A plus B plus C, again 2 times of A plus B plus C, again 2 times of A plus B plus C, and that will be C plus A, and that will be A plus B, and that will be B plus C. Okay, likewise A plus B, B plus C and C plus A. Okay,
So taking 2 common, okay. So now taking 2 common, taking 2 common from row 1, from row R1. So that will be 2 times of A plus B plus C and A plus B plus C and A plus B plus C. That will be C plus A plus B and B plus C, A plus B, that is B plus C and C plus A. Okay. So now R2 minus R1 and R3 minus R1. Okay. So that will be 2 times of A plus B plus C, A plus B plus C and A plus B plus C, and that will be minus of B. Okay, and that will be minus of C and that will be minus of A, minus of B, minus of A and minus of C. Okay, now again, now apply. Now again applying. Now मेरे को यहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस R1 में से इन दोनों एलिमेंट को घटा देता हूँ. सो दैट विल बी नाउ R1 applying that R1 plus R2 plus R3. So that will be 2 times of A, B and C minus B minus C minus C minus A minus A minus B. Okay, so now taking minus 1 or minus 1 from R2 and R3. So that expression will be 2 into minus 1 into minus 1. So that will be A, B, C, B, C, A and C, A, B. So that will be that 2 determinants A, B, C, B, C, A
and C A B. Okay, and that is equal to RHS. That is equal to RHS. So hence proved. So hence proved. सो दोस्तों एक बार देखते हैं हमने क्या किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? दैट सो दैट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन is equal to two terms of this one. So let the determinant of this one is equal to this one. So this expression is as per question. This equation is as per question. Okay. So as per question this is given. So we taken the LHS side. So this is basically the LHS and this is basically the RHS. Okay. So we will take the LHS side. So LHS side हमने ले लिया है. Then after हमने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है, that R1 implies that R1 plus R2 plus R3. So that will be this one. Then after मुझे तो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं सिंगल एलिमेंट चाहिए. So with the help of this R1 मैंने पहले तो मैंने सभी से R1 जो है ये पूरी आपकी R1 है. So this particular row is R1. So R1 में से हमने 2 कॉमन ले लिया है because 2 is available in all the elements. So 2 कॉमन लेने पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है. फिर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से नीचे वाले एलिमेंट्स पे हमने ऑपरेशन लगाया है. हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया है एंड R3 पे ऑपरेशन लगाया है. तो ये आपका R2 एक्सप्रेशन है और ये आपका R3 एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन की वजह से आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं आपको, और इस एक्सप्रेशन की वजह से आपको वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रही हैं. देन आफ्टर हमने प्रॉपर्टी इन दोनों वैल्यूज़ को हमने R1 के साथ में ऐड कर दिया है. सो R1 implies दैट R1 प्लस R2 प्लस R3. सो इन सभी को अगर ऐड करते हैं तो ये प्लस B और ये माइनस C कैंसिल आउट, प्लस C माइनस C कैंसिल आउट, तो हमारे पास में सिर्फ A बचेगा. ओके, जो कि ये आ गया है. इसके बाद हमने दोनों R2 और R3 से और R3 से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो गया. देन आफ्टर आपका यही आपको प्रूव करना था जो कि इक्वल टू राइट है. सो हेंस प्रूव्ड. क्या प्रूव हो गया? दैट LHS is equal to RHS. Okay, so this is particular your answer. उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. फिर भी अगर नहीं आया तो आप इसे 1 से 2 बार देखें, और फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मुझे कमेंट कर सकते हैं. सो हैप्पी learning.